Good evening. Guys, today we are going to learn about past perfect. We have to complete our past tense, and you already know that we are learning about storytelling, right? So we have to complete these all the things, and then we have to be perfect in storytelling. So let's get started without any further ado, guys. पास्ट परफेक्ट का हम इस्तेमाल सीखेंगे गाइस, और इसका इस्तेमाल कम होता है स्टोरी टेलिंग में, बट कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो पड़ेगी तो हम कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं गाइस। और पास्ट इंडेफिनिट से बिल्कुल अलग होता है, तो आज आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि आई वेंट टू मार्केट बोलना है कि आई हैड गॉन टू मार्केट बोलना है, वो आपको समझना होगा। तो शुरू करते हैं। और दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप इसको देख सकते हो, अगर क्लासेस को यूट्यूब पे देख भी सकते हो। चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू। इज इट विजिबल टू ईच ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो आप Yes, sir. Yes, sir. आराम से कहीं मोबाइल रख दीजिए, चलते फिरते मत देखिए वीडियो, आराम से कहीं किसी कोने में खोपचे में बैठ जाइए। ओके, शुरू करते हैं। फाइन गाइस, सो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू गाइस, व्हेन वी स्टार्टेड दिस बैच आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू वर्क ऑन स्टोरी टेलिंग. And when we talk about storytelling, there are 4 situations which are very important in storytelling, and the very first is past indefinite. Second is past continuous. Number 3rd is past perfect, and number 4th is past perfect continuous. See, and I told you that time that whenever we talk about past indefinite guys, this is such a tense which is gonna be used absolutely 100%. 100%. Without past indefinite, you cannot create any story. Means it is 100%. Rest of the tenses will be used, could be 50 or 30%. So if I talk about past continuous, maybe every day you can get it 30 to 50%. And if you talk about past perfect, which we are going to learn today, is, I would say, it is used at least 0.5%, very less, very rare, 0.5, not even 1%. Though these percentages are not written anywhere, I am just telling you as per my experience that whenever you speak English every day, you get to speak past indefinite every day, you get to speak past continuous every day, but when it comes to speaking past perfect, you rarely get that situation in your daily life. You might get that situation, and same goes with past perfect continuous. So I would also say that sometimes it is used, so let's give it also 0.5%. So let's get started. You already know that we have learnt in past indefinite about second form. Everybody knows about that, yes or no? We have learnt about second form, right? Yes, sir. Yeah. Yes. And Yes, sir. Yeah. and we are able to create stories as well. Some of you are very good at storytelling, some of you are still struggling practicing. So which color gonna match? Yellow, I think. Okay then, so what is past perfect? So let's see the situation guys, since you know that this is just a situational English class. So let's get started. So I'm going to write here past perfect, and here we will learn about the situation. And your situation is, you know better that I will never say कि चुका था और लिया था दिया था. I would never say that. So don't expect this from me. The situation is guys, see now somebody is coming. Fine. So past perfect. Here let's start with your house. This is your home, and here in this home, at this home I would say basically, you are here. Okay, so now you got up in the morning, you got fresh, and you opened your wardrobe, that almirah. You wanted to take your some shirts or pants or whatever the good dress out, when you saw all the dresses were quite dirty, so all the clothes were dirty. Okay, so you could not wear that dress since it was quite dirty. Instead you put on something else. Now
you wanted to put on your favorite shoes, but when you saw your shoes were also not polished, means it was not polished. So instead you put on some other shoes. Okay, you wanted to watch TV. When you saw your TV, it was out of order. Your TV was not functioning, it was out of order. So you did not have time to get it fixed, so you went to your office. This is your office. Now you went to your office, you worked in your office, and in the evening you went back to your home. So now when you went back to your home, and here you saw that the shoes which were unpolished in the morning were absolutely polished. Somebody is coming, wait a minute. So when class starts, you are not supposed to come. This is very bad. Okay, so what I was saying, in the morning your shoes were not polished, but you went to office. When you came back to your home, you saw that your shoes were polished. It means this polishing action was already done. When you opened your wardrobe, and you were absolutely surprised to see that your clothes were washed and ironed. So the clothes which you saw in the morning, which were dirty, and here you saw that your clothes were totally washed and ironed. You saw that your son was watching TV, it means the TV was also fixed. Now when you have to tell a story, it happened with you. Now you are telling a story, creating a story, and you have to start from morning till whatever happened. When you got up in the morning, how you experienced the thing at your home, when you went to your office, and after office when you came back home and you saw everything was done. Whichever was not done in the morning was done in the evening. So now let me know that these shoes were unpolished in the morning, and when you came back to your home you found the shoes polished. So did your wife polish the shoes in front of you or before you reached home? Tell me. Before you reach home. Before this. Definitely. This TV was fixed in front of you or before you reached home? Of course before. Before I reach home. So this is the situation when you narrate a story, and when something was done before you reached home or before you went somewhere, that is past perfect. How will you create this story? So let me tell you, if you say this story, can anyone come forward and tell a story related to this? कि मैं सुबह उठा, fresh हुआ, मैंने Almira Yes, खोला. sir. Sir, may I try? Okay, the girl who is saying may I try? What's your name? Yes. Rekha. Rekha. Okay, so instead Yes, of girl, should I say lady? Rekha. Yes. Okay. So Rekha, go ahead, please. Go ahead. Okay, sir. Actually, in the morning I got up, then I performed my morning ablutions. After that, when I opened my wardrobe, then I saw my all shirts was dirty. So after that, when I saw my shoes, all shoes were unpolished, and when I wanted to watch the TV at that time, TV also was not working. So after that, I went to my office, and when I came to my home in the evening, when I got surprised when I saw my all the clothes were in the almirah had washed, and my shoes also had polished, and TV also had fixed. So after that, I became very happy. All everything was set had set their place. So now guys, let me tell you, here you have two options. You have two options to say that something was done before you reached home. The first option is your active sentence, right? Active sentence. In active, when you say, you have to, introduce the name of the person. Excuse me, sir. Tell me, please. Sir, option There spell is any incorrect. mistake? Did I do any mistake? Yes. That is what I am going to tell you. Okay. So let me tell you guys. First of all, my lecture should be done. If you interrupt, then Okay, it is not going to be good. See. सर हिंदी में समझाइए, सबको क्लियर नहीं है.
ओके, ठीक है। देखिए, तो अभी जो आपने सीन देखा कि जब हस्बैंड घर पहुंचा तो उसके जो शूज़ थे वो पहले से क्या थे, पॉलिश्ड हो चुके थे, ये भी क्लियर है। जो टीवी था वो टीवी भी फिक्स हो चुका था, रिपेयर हो चुका था, और जो उसके कपड़े थे, जो क्लोथ्स थे, वो क्लोथ्स भी धुल गए थे, आयरन हो गए थे। ये सब तो क्लियर है कि ये हस्बैंड के आने से पहले ही हो गया था। यहाँ तक तो डन है ना, सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। तो इसको बोलने के लिए अब जब हस्बैंड कहानी सुनाएगा तो वो कहानी सुनाते वक्त इन एक्शंस को दिखाने के लिए दो मेथड का यूज़ करेगा, एक एक्टिव का और दूसरा पैसिव का। और ध्यान से देखिएगा, एक एक्टिव का और दूसरा पैसिव का। अगर वो एक्टिव का यूज़ करेगा तो फिर उसे नाम लेना पड़ेगा कि उसके जूते किसने पॉलिश किए, उसे दिखाना पड़ेगा ना, उस व्यक्ति का नाम दिखाना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट दिखाना होगा। उसके बाद क्या लगाना होगा, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है कि मैं घर पहुंचा 10 बजे, वो ऐसे बोल रहा है कि आई रीच्ड होम एट 10 PM, रात को 10 बजे पहुंचा। एंड आई सॉ, मैंने देखा कि मेरी वाइफ ने, अब उसको नाम लेना है कि उसके जूते पॉलिश करने वाला कौन होगा, मान लो उसकी वाइफ ने किया होगा। तो वो कह रहा है कि मेरी वाइफ ने जूते पॉलिश कर दिए थे। तो अब वो कैसे बोलेगा, माई वाइफ हैड पॉलिश्ड द शूज। ओके फाइन। मेरी वाइफ ने टीवी को रिपेयर भी करवा लिया था। तो शी करके शी हैड रिपेयर करवाना थोड़ा पॉजिटिव में आता है, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव लगाता हूँ। शी हैड गॉट द टीवी फिक्स्ड या रिपेयर्ड। ओके, मेरी वाइफ ने कपड़े धो दिए थे और आयरन करके अलमीरा में रख दिया था। तो बोल सकते हो कि शी हैड washed and iron. and ironed my clothes, washed and And iron ironed my my clothes। clothes. तो हम यहाँ पर ये नाम ले रहे हैं कि किसने इसको परफॉर्म किया, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा इसके जब ये घर पहुँचा तो इसकी आंखों के सामने नहीं हुआ, इसके जूते भी पॉलिश पहले ही हो गए और किसने किए, वाइफ ने किए। तो जब हम नाम लेंगे तो कौन सा वर्जन कहलाएगा, एक्टिव वाला कहलाएगा। लेकिन कई बार होता है कि हमें नाम नहीं लेना है, हमें काम दिखा देना है, नाम नहीं लेना है, तो हमें पैसिव का सहारा लेना पड़ेगा। अब पैसिव का कैसे होगा, अब बंदा कह रहा है कि मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा, कैसे बोलेगा, I reached I reached home आई रीच्ड होम एट at 10 10 o'clock 10 in the PM। night. मैंने देखा, आई सॉ, p.m. यहाँ से ले लेते हैं नीचे से। मैं अभी आपको पैसिव पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है। So may I try? आप बोलिए, मैं बोलती हूँ, मैं कर पाती हूँ कुछ। ठीक है, वैसे आपका नाम क्या है? नीना देगी। ओके फाइन, आई गॉट यू। आप हिंदी बोलिए, मैं कोशिश करती हूँ कर पाई तो। ठीक है, तो मैंने देखा, आई सॉ, मेरे जूते पॉलिश किए जा चुके थे। My shoes had been polished. हाँ जी, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैड बिन लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। बाकी लोग भी समझ ही रहे होंगे मुझे लग रहा है। यस, Yes, sir. हैड बिन पॉलिश। यस सर। क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है, हमें वाइफ बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। हमें बोलना भैया मैं जब पहुँचा मेरे जूते पॉलिश हो गए थे, पता नहीं जी किसने किए, किसी ने तो किए होंगे बट हो गए थे जी। हमें पैसिव का सहारा लेना पड़ेगा। अब मेरा टीवी फिक्स हो चुका था, My TV had been got. My TV had been हैड बिन फिक्स्ड, खाली हैड बिन फिक्स्ड, उसमें गॉड की जरूरत नहीं, फिक्स कर दिया गया था। किसने किया पता नहीं। माई टीवी हैड बिन फिक्स्ड, मेरे कपड़े धुल गए थे, आयरन कर दिए गए थे। My clothes My had been clothes had been washed and ironed. हैड बिन, Yes, I have a query. हाँ जी, Sir, she polished your shoes. तो she had polished your shoes. तो वो तो she polished भी तो बोल सकते हैं. जी Had क्यों लगाना हाँ जरूरी है? इसका डिफरेंस मैं कराता हूँ, अभी कराता हूँ, हो जाएगा क्लियर। जैसे I cooked food या उन्होंने she cooked food और she had cooked food. डेफिनेटली, मतलब दोनों ही काम कंप्लीट हो चुके हैं. बिल्कुल एकदम बराबर है। थोड़ा सा शायद आप लेट आए Sorry. हैं। ओके, मैं इसको क्लियर कराता हूँ। देखिए गाइस, अब इस डिफरेंस को देखिए, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। जनरली स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें दो स्ट्रक्चर का अंतर देखना है, सब्जेक्ट
वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है हमारा सब्जेक्ट हैड प्लस हैड थर्ड वर्ब फॉर्म की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब मैं सिचुएशन दूंगा और आपको फैसला करना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब भी आप ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो यहाँ Yes, पर sir. है कि इसको पहचानने का तरीका है, एक मिनट, कोई भी एक्शन, या रुकिए मैं सिचुएशन देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। ये एक घर है, ये अनिल है, अनिल नाम का कोई लड़का है मान लो। Yes. ये लड़का सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, उसके बाद ये अपने दोस्त के घर गया। ये इसके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स होम। ओके, दोस्त के घर गया, उसके बाद Yes, sir. ये दोस्त से मिला। सबसे पहले इसने दरवाज़ा नॉक किया, ठक ठक। दोस्त ने दरवाज़ा खोला, दोस्त ने बोला अंदर आ। दोस्त ने इसको बोला सोफे पे बैठ, ये बैठ गया। ओके, ये दोस्त उसका, ये दोनों बातें कर रहे हैं। अचानक दोस्त की वाइफ आई, थोड़ी सी दोस्त से बातें की और ये बोली कि मैं मार्केट जा रही हूँ। और ये कहाँ चली गई? मार्केट चली गई। अचानक दोस्त का बच्चा आया, 10-12 साल का। इसने बोला कि डैडी डैडी मैं स्कूल जा रहा हूँ। और ये कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। ओके, इतना सा बस सीन है। अब जब ये अनिल ये पूरी कहानी सुनाएगा, ये जितना हुआ ये सब होगा सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसे और क्यों अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, इसमें कहीं हेड नहीं, इतना पता है कि जब किसी सब्जेक्ट ने किसी पास्ट टाइम में कुछ भी किया, वो सुबह उठा, फ्रेश हुआ, गया, खाया पिया, कुछ भी किया, वो सेकेंड फॉर्म है। ये तो हम पहले कर चुके हैं ना, ये सेकेंड फॉर्म होता है। लेकिन जी Yes, sir. लेकिन सारे टास्क कंप्लीटेड तो हो चुके हैं ना जब वो कहानी सुना रहा है। हाँ जी, जब वो कहानी सुना रहा है सारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जितने भी काम Yes, sir. कंप्लीट हुए हैं, जो सिंगल कंप्लीट होते हैं, इसमें मेरे आने से पहले तेरे जाने से पहले वाली फीलिंग ना हो। सिंगल कंप्लीट के लिए हमें ये मौका दिया गया है, हमें ये चुनना है। मैं अभी आपको ये दिखा दूंगा कि ये कब यूज़ होगा, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी। अभी खाली ये देखिए आप, अभी ये देखिए। Yes, sir. अब ये लड़का ये 5 दिन बाद भी कहानी सुनाएगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी वाली फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, मैं हेड लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5 दिन बाद भी सुनाएगा तो ऐसे बोलेगा। अनिल बोलेगा हाँ, बिल्कुल। आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग या 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश। सेकेंड फॉर्म देखते रहिए। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, हैड मतलब टुक, ये तो सबको पता है ना, टुक, यू नो। Yes, sir. तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट। Yeah. आफ्टर Yes, sir. दैट आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। आई नॉक्ड ऑन द डोर, ऑन मतलब इस पर ठक ठक मारा। माई फ्रेंड ओपनड द डोर। आई वेंट इन साइड। Friend went inside and मेरी बारी है ना बोलने की, तो अलाउ मी टू स्पीक। आई वेंट इन साइड। माई फ्रेंड सेड टू मी, हे प्लीज हैव अ सीट। सो आई सैट ऑन द काउच। माई फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। सडनली हिज वाइफ then केम। started अरे suddenly while ए भैया, ए बाबू, हो जाइए आप। बंद कीजिए ना ऑडियो। सडनली his wife came and started talking to me. After some time his wife went to market. Suddenly his son came and son also went somewhere. He went to school. यहाँ मैंने जितना बोला सब में देख रहे हो, went to, came, sat, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. ऐसे तमाम Yes. सिचुएशन जो हुए, yes sir, ये सारा हमारा सेकेंड फॉर्म है। अब सिचुएशन में बदल रहा हूँ, तब देखिएगा फर्क। ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है। अब देखिए, सेम अनिल बाबू गए घर, दरवाज़ा खटखटाया, दोस्त ने दरवाज़ा खोला और ये फिर अंदर बैठ गए, इस सोफे पर बैठ गए। दोस्त बात करने लगे, दोनों आपस में बात करने लगे। इसने पूछा
कि यार तेरी वाइफ कहाँ है? इसने बोला अरे मेरी वाइफ, यानी कि जो डब्लू वाइफ, मेरी वाइफ यार मार्केट गई है। अच्छा यार तेरा बेटा कहाँ है? सन, अरे मेरा बेटा ना स्कूल गया हुआ है। यानी कि जब ये अनिल गया इसके घर तो क्या इसके दोस्त की वाइफ वहाँ थी, मौजूद थी कि नहीं थी? यस और नो? इस वाली कहानी नहीं थी। नहीं थी। No, sir, यानी कि नहीं वाइफ नहीं थी। वाइफ पहले कहाँ जा चुकी थी? मार्केट जा चुकी थी। Market. क्या उसका बेटा मौजूद था वहाँ पर? नहीं मौजूद था। स्कूल बेटा स्कूल जा चुका था। अब अनिल यहाँ पर कहानी सुना रहा है। अब अनिल ऐसे कहानी सुना रहा है कि वेल आई गॉट अप अराउंड 6 o'clock in the morning. After that I got fresh. I had my breakfast and I went to my friend's house. I knocked on the door. My friend opened the door. I went inside. My friend said, "Hey, have a seat." I sat on the couch. We started talking. That time मेरा दोस्त अकेला था. My friend was alone there. His wife, अब मुझे बोलना है कि उसकी वाइफ मार्केट गई हुई थी. अभी डायलॉग में कैसे बोलूंगा? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ. His wife went to market या his wife had gone to market. फैसला कीजिए जरा. His wife gone to had market. gone to Had market. gone His wife had gone to market. जी. तो क्यों आखिर मुझे Had gone to हेड market. की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे क्योंकि सर हमारे सामने नहीं हमारे सामने काम में है। यस हमारे आंखों मेरे के आने सामने से नहीं पहले ही हुआ चला गया। जी। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं अपने दोस्त के घर गया, उसकी वाइफ नहीं थी, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले ही कहीं चली गई होगी ना। ये सिचुएशन मैंने ये कहा सब ना जी। पास्ट ऑफ पास्ट लग रहा है। हाँ जी, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। किताबों में खूब पास्ट ऑफ पास्ट दुनिया भर के वीडियो बने हैं, लेकिन वो रटने से नहीं Yes, sir. सिचुएशन समझना है। इसका हाँ नाम मुझे समझ में आया सर। इसका नाम अगर इमली ऑफ इमली भी होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस सिचुएशन से मतलब है, नाम में कुछ नहीं। मैंने कहा कि 0.5% यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ ही नहीं है इसका। तो इसका इस्तेमाल कब है? कि जब कोई काम पहले ही कंप्लीट हो गया था। अभी मैं आपको बहुत सिचुएशन दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यार उसकी वाइफ नहीं थी, एक्चुअली उसकी वाइफ मार्केट गई हुई थी। तो मेरी हिंदी पे गई हुई थी से मतलब नहीं है, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा हिज वाइफ वॉज नॉट देयर, एक्चुअली शी हैड गॉन टू मार्केट एंड Yes, sir. उसका बेटा भी वहाँ पर नहीं था। हिज सन वॉज ऑल्सो नॉट देयर, ही हैड गॉन टू स्कूल। Gone to वो school. स्कूल गया हुआ था। अगर मैं गलती से बोल दूं कि हिज सन वेंट टू स्कूल, ऐसा लगेगा कि वो था और मेरे आंखों के सामने कुछ देर बाद वो स्कूल चला गया होगा। ये फीलिंग आएगी। एक और सिचुएशन, अभी वो एकदम क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और हमेशा के लिए सर पिक्चर, हमेशा के लिए पिक्चर क्लियर हो गई सर। ओके थैंक्स सर, मतलब हमेशा के लिए। जी। अब एक सिचुएशन है कि यहाँ पर एक चिंटू नाम का लड़का है। चिंटू नाम का लड़का है। ये कमरे में था, अचानक इसका फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन पिक किया, इसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन उठाया। दिस इज़ हिज गर्लफ्रेंड। गाइज मेरे आपको वीडियो लेक्चर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही सब मिलेगा, तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है? Sir, I like it. ये सब मिलेगा। कई लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि सर मेरी बेटी देखती है, मेरा बेटा देखता है, ठीक है, बट चलेगा। स्कूल में जो पढ़ता है उसको पता ही नहीं है, छोटा बच्चा भी कहता है और मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, सब चलता है। एनीवेज, तो इसका फ़ोन बजा। अब फ़ोन पे इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि सुनो ना, आओ ना मेरे घर, मिलो ना मुझसे, सुनो 10 बजे आ जाना। तो मान लो कि सुबह 10 बजे का वक्त रखा कि मिलना। इसने बोला हाँ हाँ आता हूँ ना, मैं अभी आता हूँ। ये गया। अचानक ऑन द वे, रास्ते में इसे अपना कोई पुराना दोस्त मिल गया। स्टोरी को देखिए, पुराना दोस्त मिल गया। अभी अपने दोस्त से बात करने लगा और बात करते करते इट वाज अराउंड 10:30। अब जब जाने लगा अपनी गर्लफ्रेंड के घर तो ये पहुंचा 11 बजे, सुबह 11 बजे पहुंचा तो गर्लफ्रेंड वहाँ पर नहीं थी, ताला बंद था। अब ये जब कहानी सुनाएगा, ये कह रहा है कि भाई मैं पूरे अंग्रेजी में देखना कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। ये कह रहा है कि मैं भाई अपने कमरे में था, मेरा फ़ोन बजने लगा, मैंने फ़ोन पिक किया, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा मुझसे मिलो, मैंने कहा ठीक है आता हूँ। उसने 10 बजे का टाइम दिया। मैं जब जाने लगा गर्लफ्रेंड के घर तो रास्ते में मेरा दोस्त मिला, मैं उससे बातें करने लगा। फिर 10:30 मैंने देखा टाइम तो 10:30 था। मैं जब गर्लफ्रेंड के घर पहुँचा तो 11 बज गए थे और मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो एक्चुअली कहीं गई हुई थी, कहीं चली गई थी। ये जो कहीं चली गई थी, ये बोलने के लिए मैं 2 ऑप्शन में से क्या चुनूंगा? शी वेंट समवेयर, शी हैड गॉन Had gone. Had gone. क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले ही वो निकल गई थी। इट मीन्स यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा। अब ये पूरी की पूरी जो कहानी है इसको अरमान सुनाएगा। Yes, sir. गो हैड अरमान।
सर मैंने मतलब सर यही है ना कि मैं घर से सुबह निकला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, वो घर पे नहीं थी, इतनी कहानी है ना सर। हाँ, लेकिन तुम ऐसे शुरू करो कि मैं घर पर था, अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, यहाँ से शुरू करो। ओके सर। I was in the room. I was in my room. Suddenly my phone suddenly my phone rang. It started ringing. I picked up the phone, and that was my girlfriend's phone. And she told to me, oh, come on my room, please come come on my room. Come in my room. There is no कम इन one. माई रूम, अरे बुड़बक, कम टू माई हाउस ऐसे बोला होगा। Sir, कम इन माई please रूम, come मेरे to my कमरे में आओ, क्या है? come to my house. There is no one in though there is no one in my house. So I went to her home. नहीं, अब यहाँ But वेंट सुनो, यहाँ वेंट नहीं होना चाहिए। वेंट का मतलब तो फिर चले गए घर, तुम जा रहे थे, लगाओ ना पास्ट कंटिन्यूअस, लगाओ I was past going up. Sorry, sir. I was going towards her home. But when I reached her home, and I saw my girlfriend had gone. There was no one in his room. ठीक है। Oh, तो स्टोरी कुछ ऐसा होना चाहिए कि चिंटू अगर कह रहा है, वेल यस्टरडे आई वाज एट माय होम, सडनली माय फोन स्टार्टेड रिंगिंग, आई सॉ इट वाज माय गर्लफ्रेंड्स कॉल, आई पिक्ड अप द कॉल, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय गर्लफ्रेंड, शी सेड, हे डार्लिंग, व्हाई डोंट यू मीट मी टुडे? I asked, okay, at what time should I come to your house? She said, why don't you come around 10 o'clock in the morning? I agreed, and after that, I disconnected the call. I got dressed up and I started heading towards my girlfriend's house. On the way, out of nowhere, one of my old friends came across me. I started talking to my friend. After completion of the conversation, when I looked at the watch, it was around 10:30. I got bit nervous and bit confused that my girlfriend is very short tempered. She might scold me a lot. So I started heading towards my girlfriend's house, and when I reached over there, it was around 11 o'clock. I saw she wasn't there. Actually, she had gone somewhere. She had gone somewhere. समझ में आया? तो Yes, sir. तो Yes, इतना sir. Sir, इतना she was not. क्या बोले वो? She was. she was not there, she wasn't there, मतलब she was was not not there. there. Actually she had gone. तो इतना सा had gone बोलने के लिए मुझे कितनी भूमिका बांधनी पड़ी, इतनी लंबी कहानी बोलनी पड़ी। तो इससे ये साबित होता है कि हम जब आगे स्टोरी सुनाएंगे तो ये बहुत कम यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा क्या हमें लगा, ये सुबह उठा, ये फ्रेश हुआ ना, सेकेंड फॉर्म, कहीं कहीं past पर indefinite. कहीं पर was were, कहीं पर अच्छा मैं जा रहा था तो थोड़ा सा was were, कहीं पर स्टेट ऑफ बीइंग की वो वहाँ नहीं थी तो स्टेट ऑफ बीइंग आ गया ना, शी wasn't there। तो पूरी स्टोरी में आपने Yes, देख ली, ये है। चलिए अब एक और सीन, सर इसको सिंगल यूज नहीं होता है ना सर? सिंगल यूज कहीं कहीं है, मैं दिखा दूंगा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी चलने दीजिए आराम, पूरे 1 घंटे का क्लास है। अंग्रेजी को सिचुएशन पे जो समझ गया वो सीख गया। और वो अगर कोई किताब खोल के आपको ट्रांसलेशन सिखाएगा, जिस वाक्यांत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आता है, तो भैया वो क्लास आई डोंट थिंक दैट इट इज वर्थ इट। तो 10 साल से पढ़ते पढ़ते वो तो समझ में नहीं है, आज समझ में आ गया है। जी अच्छा, यहाँ पर एक सीन है कि ये एक लड़का है और ये लड़का अपने दोस्त के घर गया, बोला आज अपने दोस्त को सरप्राइज़ देता हूँ। दोस्त के घर गया तो भाई देखा तो यहाँ ताला लटका हुआ है, दोस्त था नहीं वहाँ पर, वापस आ गया। उसके बाद वापस आया, कुछ देर बाद फिर उसकी मुलाकात उसके दोस्त से हुई। अभी दोस्त से पूछ रहा है, यार मैं तेरे घर गया था, तू था नहीं। तो ये कह रहा है कि कितने बजे? यार 9 बजे। अच्छा 9 बजे, यार सॉरी यार, एक्चुअली 9 बजे ना मैं मंदिर गया हुआ था। अभी एक डायलॉग इसको बोलना है कि 9 बजे मंदिर गया था। अभी क्या बोले, आई वेंट टू टेम्पल बोले कि आई हैड गॉन टू टेम्पल बोले? सोचो। I had gone to temple. I had gone to temple. अब ऐसा ही क्यों बोलेगा? क्योंकि जब ये 9 बज रहा होगा, सुबह के जब 9 बजे, इसका दोस्त तो यहाँ था लेकिन ये वाला लड़का यहाँ नहीं था, यानी कि तो अब यानी कि 9 बजे जब ये आया तो इसके आने से पहले ही चला गया होगा ना मंदिर, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो अब जब दोनों में बात हो रही है, ये कह रहा है कि वेयर वर यू, तू कहाँ था 9 बजे? ये कह रहा है 9 o'clock, एक्चुअली मैं मंदिर गया था। तो वेंट नहीं कहेगा, आई हैड गॉन टू टेम्पल बोलेगा। यानी कि जब तू आया, इसका पूरा मतलब है कि जब तू 9 बजे आया तो तेरे 9 बजे आने से पहले मैं किधर जा चुका था?
मंदिर जा चुका, ये वाली फीलिंग है। सर इसमें 2 एक्शन होते हैं ना? हाँ जी, 2 एक्शंस होते हैं। तो जब किताबों में आप पढ़ोगे ना दोस्तों, तो किताबों में लिखा रहेगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये भूमिका बांध के बड़े बड़े सेंटेंस, और बचपन से लोगों ने वही सीखा है कि मेरे दिमागों स्टेशन में वही पहुंचने बैठा से पड़ा है पहले बचपन से। ट्रेन जा चुकी थी ये। लेकिन इसको रियल लाइफ में अपनाइए। आप इसके अंदर चाहो तो ऑलरेडी लगा सकते हो। आपको बोलना है कि यार वो लोग पहले ही खाना खा चुके थे, तो कैसे बोलोगे? दे हैड You already had They ऑलरेडी had already had फूड। लगा सकते हो जी। उसने पहले ही मेरे कपड़े धो दिए थे। शी हैड She had already washed my clothes. washed my Washed. clothes। ऐसे बोल सकते हो आप। Sir, please translate something for me. टेल मी। वहाँ ताला लटका हुआ था, आपने कुछ ऐसा कहा। There was hang the lock on the door. एक्चुअली अगर लिटरली कोई ताला लटका होगा, आजकल तो लटकना बंद हो गया ताला, तो अगर जी। तो कोई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, लटका हुआ और कोई चीज़ ऐसा हो जैसे बैठा हुआ, कोई बंदा बैठा हुआ था, कोई बंदा Sitting use करते हैं। खड़ा था, कोई बंदा लेटा हुआ था। Laying. तो इन चीज़ों में हमें आईएनजी लगाना होता है, यानी कि हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है और देखना है कि पास्ट है प्रेजेंट है, वैसा वाला हम वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ताला लटका हुआ था पास्ट के अंदर है तो द लॉक वाज, There was hanging. हाँ द लॉक वाज हैंगिंग, या अच्छा, lock was हाँ hanging. लॉक वाज हैंगिंग। बट स्पोकन इंग्लिश में लोग इस तरह से बोलते नहीं, मतलब ये सर, लिटरली आपने ट्रांसलेशन बोला हो मुझे गया, वो ये ऐसा translate लगेगा। करने लगी, मुझे समझ ही नहीं आया। तो बंदा Door was locked. हाँ जी, तो ये हो गया कि जैसे हिंदी बिल्कुल वैसा ट्रांसलेट कर दो। होता है ना कि जैसे तुम मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट ईट माय माइंड, तो वो ऐसे ही कर दिया। तो हमें इसका सब्स्टिट्यूट बोलना है। ताला लटका हुआ था मतलब डोर बंद था, द डोर वाज लॉक्ड। Door was locked. और ये जो लॉक्ड है ये एडजेक्टिव है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। कैसे होता है कि वो शादीशुदा था तो ही वाज He मैरिड, was married. तो उसी लेवल से वो लॉक्ड था। जैसे कुर्सी टूटी हुई थी, द चेयर वाज ब्रोकन। तो ये सब जो ब्रोकन है ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये अवस्था है कि टूटी हुई अवस्था। जैसे बोलना है कि यार वो घायल था, तो हम कैसे बोलते हैं? ही वाज इंजर्ड। तो इंजर्ड ये थर्ड फॉर्म नहीं, एडजेक्टिव है जो कि थर्ड फॉर्म में दिखते हैं। उसी तरीके से यार वो बड़ा उत्तेजित था, ही वाज एक्साइटेड, Excited. तो ये थर्ड फॉर्म है। ओके, वो पढ़ा लिखा है, ही इज एजुकेटेड, He is educated. ये एजुकेटेड थर्ड फॉर्म नहीं है, सब एडजेक्टिव है जो देखने में थर्ड फॉर्म है। सर एनीवेज, ये कैसे मालूम चलेगा सर ये ईडी वाले एडजेक्टिव होते हैं और आईएनजी वाले कुछ होते हैं एडजेक्टिव? इसको जैसे कि अब आपके सामने एक असली शाहरुख खान आ जाए, एक नकली आ जाए और बिल्कुल एकदम हूबहू हो, तो मुश्किल होगा ना थोड़ा सा, लेकिन पता चल ही जाता है। तो वैसे ही अगर एक जी, Sir, these are the state of being or just simple sentence? ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? ऐसे होता है, सब्जेक्ट होता है उसमें, ऐसे एम लगा होगा, इज, आर, पास्ट के लिए क्या लगा होगा? वाज, वर, फ्यूचर के लिए विल बी। ठीक है, शैल भी तो उतना आजकल चल नहीं रहा है, तो विल बी हो गया। और इसके बाद यहाँ जो लगा होगा वो बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो या तो वो नाउन होगा या वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव कोई भी हो सकता है, नॉर्मल जो आप लोग गुड ब्यूटीफुल करते हो नॉर्मल एडजेक्टिव है, और एक क्या होता है? V3 वाला, और एक होता है वर्ब में आईएनजी वाला। अब मैं इशारा करके आपको दिखाता हूँ तब आपके समझ में आएगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिखते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि शी वॉज ब्यूटीफुल, तो अब इसको रूल पे देखिए, ये रहा सब्जेक्ट शी, यहाँ से क्या आ गया? वॉज, और इनमें से ये नाउन एडजेक्टिव में से कौन सा वर्जन आ गया? एडजेक्टिव वर्जन, शी वॉज ब्यूटीफुल। Beautiful. तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं कहता हूँ कि ही वॉज अ फार्मर, तो अब देख लीजिए सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, यहाँ से क्या लिख उठाया हमने? वॉज, और ये इनमें से क्या है? फार्मर, नाउन है, ही वॉज अ फार्मर। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ही वॉज कन्फ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म जैसा लग रहा है ना, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये वॉज क्या हो गया? जो उसका लिंकिंग वर्ब, और इनमें से कौन सा है कंफ्यूज्ड? ये V3 वाला एडजेक्टिव है, कंफ्यूज्ड। उसी तरीके से मैं बोलूँ कि भाई किसी लड़की को देख के मैं कह रहा हूँ कि
शी इज़ मैरिड। अब शी इज़ मैरिड, अब खुद ही आप समझिए कि स्टेट ऑफ बीइंग है कि नहीं, है ना स्टेट ऑफ बीइंग। सर जी एक मिनट, सर स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या, मतलब जैसे लिखा सी वॉज ब्यूटीफुल, मतलब है मैं क्या बताता स्टेट ऑफ बीइंग हूँ के स्टेट ऑफ मतलब? बीइंग का मतलब क्या होता है, पहले वो देखिए, कहीं पर मैं लिख देता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है सबसे पहली चीज़ कि नो एक्शन, इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, खाना पीना नहीं होगा, सबसे पहली चीज़। अब इसमें क्या क्या आइटम आ सकता है, एक मिनट। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आपका आता है आपकी लोकेशन, आप कहाँ पर हो, कहाँ पर थे, कहाँ पर होगे, आपकी कंडीशन, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, बीमार हो, आपकी जो भी पोजीशन है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपका जो भी डेजिग्नेशन, मतलब सारा A to Z, आपका फिजिकल अपीयरेंस सब स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आता है। कोई कहता है मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, आपका मैं छत पर हूँ, मैं वहाँ हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ जो है जिसमें एक्शन ना हो, ये सब कुछ आपका स्टेट ऑफ बीइंग आ जाएगा। यहाँ तक कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, आपका जो भी रिलेशन आप दिखाते हो ना, स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आता है, आपका सारा रिलेशन वगैरह सब स्टेट ऑफ बीइंग। तो अगर मैं कहता हूँ कि यह कुर्सी टूटी हुई है, तो ये कुर्सी की स्टेट मतलब अवस्था, बी मतलब होना, इसके होने की अवस्था है, इसकी अवस्था कैसी है, टूटी हुई है। तो मैं कैसे बोलूँगा, दिस चेयर इज ब्रोकन। अब चूंकि ये दिस चेयर इज ब्रोकन पैसिव जैसा लगता है ना, पैसिव जैसा, Yes, sir. है ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये पैसिव तो नहीं है। तो हाँ भाई, स्ट्रक्चर तो उसका पैसिव का सेम ही है। अभी आपको समझना पड़ेगा ना, बातों से पता चलेगा, बैकग्राउंड से पता चलेगा। जैसे आप सिचुएशन देखो, अभी दूध का दूध हो जाएगा, लकीर के फ़कीर थोड़ी बनना है। ये देखिए, अब लकीर के फ़कीर का कोई इंग्लिश नहीं है, कभी पूछो कि इसका ये से मुहावरे होते हैं, इसका मतलब कि डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर पॉइंट, यू शुड वेरी एज पर द सिचुएशन। यहाँ पर एक बंदा है और इसके घर में एक मेहमान आया, सिचुएशनल इंग्लिश का मज़ा लेते हुए आइए, और यहाँ पर एक कुर्सी है। अब मेहमान इस कुर्सी पर बैठने जा रहा है, अब ये कह रहा है अरे रुके रुके, मत बैठिए, कुर्सी टूटी हुई है भाई। इतना डायलॉग इसको बोलना है कि मत बैठिए, कुर्सी टूटी हुई है। आपको क्या लगता है वो कैसे बोलेगा, मत बैठिए, डोंट सिट हियर, डोंट सिट ऑन द चेयर, डोंट सिट ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर मत बैठिए। एक्चुअली ये टूटी हुई है, एक्चुअली इट इज ब्रोकन। तो तुरंत अब इट इज ब्रोकन का तो एक और मतलब निकलता है ना कि इसको तोड़ा जाता है, ये भी तो मतलब निकल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर ये सही लग रहा है कि इस कुर्सी पर मत बैठिए, इसको तोड़ा जाता है? किधर से हिंदी ऐसा सोच सकता है कोई? तो यहाँ पर ये सूट नहीं किया। तो इससे सुनने वाले को पता चल के अच्छा ये इशारा कर रहा है कि अच्छा कुर्सी टूटी हुई है। जैसे आप मार्केट से जा रहे हो, दो लोग हो और आपने किसी बच्चे को देखा है बेचारा बहुत जख्मी है, घायल है, तो क्या बोलोगे, हे लुक एट ही इज इंजर्ड, ऐसा बोलोगे ना, ही इज इंजर्ड। तो इंजर्ड पैसिव थोड़ी किसको घायल किया जाता है, वो घायल है भाई। आपने किसी लड़की को देखा, आपने बोला हाय तो कयामत है, दूसरा बोलता है शादीशुदा है, तो आप जो कहते हो कयामत है वो भी स्टेट ऑफ बीइंग है। शी इज कयामत, हाँ शी इज एकदम सिजलिंग और जो भी आप कहते हो, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। दूसरा कहता है शादीशुदा है, शी इज मैरिड, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ये जो भी है वो अच्छा है, बुरा है, टूटा है, फटा है, आपका कपड़ा कहीं से कोई फटा हुआ है, आपका कपड़ा मैला है, गंदा है, सब स्टेट ऑफ बीइंग है। और आपका कपड़ा धुला हुआ है, धुला हुआ भी स्टेट ऑफ बीइंग। आप ऐसे बोलोगे माई क्लोथ्स आर वॉश्ड, ये अब ये कोई कहेगा सर ये तो पैसिव लग रहा है, हाँ लग तो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसका एक और मतलब निकल रहा है कि मेरे कपड़े धोए जाते हैं, निकल नहीं रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना पैसिव ये। लेकिन इंसान कैसे समझेगा कि ये पैसिव है कि है स्टेट ऑफ बीइंग है? ऐसे समझेगा, कोई कह रहा है, वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड से, सुनो तुम्हारे कपड़े सब धुले हुए हैं, धुले हुए कपड़े पहनो, योर ऑल द क्लोथ्स आर वॉश्ड, तुम्हारे सारे कपड़े आयरन किए जा चुके हैं, मतलब आयरन अवस्था में है, ऑल द क्लोथ्स आर आयरन, गो एंड पुट ऑन। और यही अगर बेसिकली ये अवस्था को दर्शाता है ना, अवस्था को दर्शाता है। अगर यही उसकी वाइफ बोले, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लगा कि सुनो तुम्हारे कपड़े धो दिए गए हैं, पूरा फोर्स करके ऐसा बोले, तो ऐसे बोलेगी, योर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। जो लोग ईमेल राइटिंग करते होंगे उनको पता होगा कितना चलता है ये मार्केट में, हैव बीन हैज बीन का पैसिव खूब चलता है भाई। उसको नौकरी पे रख लिया गया है, एक लड़की को हायर किया गया है, अ गर्ल
हैज बीन has been फायर्ड, fired. ठीक है, और उसे फायर कर दिया गया है, शी हैज बीन। She has been fired. fired. तो जब आप पैसिव सीखोगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा एज पर द सिचुएशन। सर ये तो परफेक्ट का पैसिव है ना, हाँ है जी, green वाला। पैसिव है। तो इसीलिए सवाल वो पूछे जो इससे रिलेटेड हो। फिलहाल आप डेविएट ना करें बैच को, आगे बढ़ते हुए बढ़े आगे। सर जी। I have a question. पास्ट परफेक्ट में टाइम नहीं लगा सकते ना, जैसे हमने कोई काम काल कंप्लीट कर दिया, आई गेट कंप्लीटेड दिस वर्क यस्टरडे, नहीं, उसके ऐसा अंदर नहीं बोल सकते। आप बस यही बोलो कि यार जब मैं वहाँ गया उससे पहले ही मैंने वो उसने कर लिया था, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। ऑलरेडी वगैरह लगा सकते हो, टाइम नहीं दिखा सकते। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क यस्टरडे। हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो जी। अब इसमें एक आइटम और बचा, मैं करा देता हूँ, उसके बाद अपने डाउट पूछना। देख लीजिए, अब इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। ये आप हैं और आपने लाइफ में पहली बार कुछ खाया, पहली बार पिज़्ज़ा खाया, पहली बार आपने एक्सपीरियंस लिया, और कह रहे हो इससे पहले मैंने ज़िंदगी में पिज़्ज़ा नहीं खाया था। ये स्टेटमेंट बोलने के लिए भी पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। कैसे बोलोगे? आई हैड नेवर Never had pizza. पिज़्ज़ा बिफोर। अब चाहो तो बिफोर दिस भी लगा सकते हो, खाली बिफोर पर भी रोक सकते हो। इसका मतलब कि इससे पहले, बिफोर का मतलब इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था। कुछ भी आप लाइफ में फर्स्ट टाइम करके जरा बोलोगे इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। आपने किसी को गले लगाया पहली बार, अब आप बोलो यार इससे पहले किसी को गले नहीं लगाया था, कैसे बोलोगे? आई I हैड had नेवर never hugged हग्ड एनीवन बिफोर। anyone before. सर अब बिफोर के बाद भी कुछ बोले तो क्या था? बिफोर समझ नहीं दिस, आया। बिफोर दिस लगा सकते हो। बिफोर दिस यानी कि इस दिस जी, मतलब समझा। इशारा करते हैं। जी जी समझ गई, आज समझ गई जी। तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो पास्ट परफेक्ट का। ओके, और एक जगह हेड नोट भी पे हो सकता है सर? कैसे कह रहा हूँ? सर हेड नोट पे हो सकता है ना? हाँ हाँ, हैड नॉट हो सकता है। ये तो नेवर का मतलब कभी नहीं हो गया। आप ये लगा दो, आई हैड नॉट हग्ड एनी गर्ल बिफोर, या बिफोर दिस, ऐसे करके आप दिखाओगे। मतलब आपने जब उसे गले लगाया तो कह रहे हो कि अभी तो गले लगा लिया, ये तो एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन ये एक्सपीरियंस लेने से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया था। समझ में आ रहा है ना? ये कहने का मतलब कि आई हैड नेवर हग्ड बिफोर। आपने लाइफ में पहली बार किसी पार्टी में डांस परफॉर्म किया, आपने डांस तो परफॉर्म कर लिया, आप नाचे, आपको कहना है यार पता नहीं मैं कैसा नाचा, कसम से इससे पहले कभी नाचा नहीं था पूरी ज़िंदगी में, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। तो आप क्या बोलोगे? आई डिडंट या आई हैडंट? खुद सोचो। आई हैडंट। तो आई हैड नॉट डांस्ड इन माई होल लाइफ, है ऐसा बोल सकते हैं ना, अपनी पूरी ज़िंदगी में, इन माई होल लाइफ, इससे पहले, बिफोर दिस। तो आपको तुरंत पास्ट सर ये परफेक्ट। अर्लियर, सर अर्लियर वगैरह कहाँ पे आ सकता है सर ये? ओके, अर्लियर मतलब अर्लियर थोड़ा सा कम पहले को दिखाता है। ऐसे दिखाता है ना कि अर्लियर उसने मुझे बताया, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ कर सकते हो, आई टोल्ड यू अर्लियर। सर वी कैन यूज इन प्रायर, सर प्रायर टू। हाँ, प्रायर टू यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस में चला जाएगा। ओके सर। सर इसकी अर्लियर की पोजीशन लास्ट में रहती है ना? ये जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम है वो लास्ट करो या शुरू करो। स्पोकन इंग्लिश में तो इंसान शुरू में बोल देता है, जैसे येस्टरडे बोलना है तो कोई येस्टरडे लास्ट में बोलता है, कोई शुरू में बोल देता है, बट लिखने में लोग ज़्यादातर लास्ट में लिखते हैं। ये है। तो एक ये हो गया, एक और देख लीजिए। अगर आपको ऐसे बोलना है, मान लीजिए कि ये आपके मोहल्ले का एक लड़का है, वो किसी लड़की के साथ भाग गया, इलॉप हो गया। इलॉप मतलब भाग जाना। और आप यहाँ पर खड़े हो और आप कह रहे हो कि मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का ऐसा करेगा। अब सिर्फ इतना डायलॉग बोलना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आई डिडंट थिंक या आई हैडंट थॉट। कभी नहीं, I never haven't किया thought. जाएगा, I never thought. तो आई हैड नेवर थॉट यहाँ पर सूट करेगा, आई हैड नेवर थॉट। अगर आपको स्पोकन में कह देता है कि आई नेवर थॉट, ठीक है, स्पोकन में कौन आपको काटने जा रहा है, लेकिन रूल कहता है कि आप ये सोचो, मतलब ये जो घटना घटी, कॉमन सेंस लगाओ, ये घटना घटने से पहले कभी आपने ऐसा सोचा नहीं था। बात वही है कि तेरे आने से पहले मैंने ये नहीं किया था, वही बात है। तो इंसान ऐसे बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई हैड नेवर थॉट
उसके बाद आप दैट लगा के जोड़ दो कि ये लड़का भाग जाएगा, दैट दिस बॉय वुड एलोप। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचो इस पर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, हैं? I never I had thought. never thought. I had never thought Cheated you me. That you would Did cheat, this. you you would cheated me. You would cheat on me, हैं? do with me like this. हाँ हाँ, you would do this to me। बहुत तरीके हैं चीट के साथ होना आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता पाऊंगा। कैसे होगा? I had never thought that I would spend some time with you. Yes, I would spend some time with you। कितना प्यारा है ना? थोड़ा रोमांटिक भी लग रहा है ना? यूज़ कर सकते हैं, रोमांटिकली यूज़ कर सकते हैं। सर वुड काहे को लग रहा है? अच्छा अच्छा, वुड क्यों लग रहा है? जी जी जी। कंडीशनल सर। ना 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 ना, कंडीशनल नहीं है। Past past. आपको कुछ ऐसा पता है जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच सुना है किसी ने? Yes. यस सर। सर विल का वुड, तो विल जो है वो बदल जाता है वुड में। वुड में या अब वो कैसे होता है, इसका एक और रूल है कि अगर आपका आधा टुकड़ा पास्ट में है तो आने वाला जो टुकड़ा है जो विल है वो चेंज हो जाना चाहिए वुड में। तो ये देखिए, आई हैड नेवर थॉट, ये आधा टुकड़ा है, ये पास्ट है ना, आई हैड नेवर थॉट, और हमने दैट से इसको जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 1। तो जब सेंटेंस नंबर 1 हो पास्ट में, तो सेंटेंस नंबर 2 का जो विल है वो कहाँ हो जाना चाहिए? वुड में हो जाना चाहिए। तो इधर जो मैं आई विल बोलूँगा, इससे अच्छा मुझे आई वुड बोलना है। ये ग्रामर का एक नियम है। ये ज्यादा सही है समझने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना मुश्किल है। बस ये ज्यादा सही है कि जो फर्स्ट टुकड़ा पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में ही बोलना होगा। जी। तो अब अगर मैं सोचूं, मैं बोलूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि I had never thought. मैं तुमसे विवाह करूंगा, तो आई नेवर I would थॉट get marry you. आई would वुड marry you. गेट, तो get नहीं आएगा। हाँ, गेट भी लगा सकते हैं। आई वुड गेट मैरिड, तो गेट के I साथ would मैरिड बोलना marry you. पड़ेगा। आई वुड गेट मैरिड लगाना पड़ेगा। तो ये भी सर गेट की जगह पे गॉड करना पड़ेगा ना, सेकंड फॉर्म। अरे भैया जी, क्या नाम है आपका? सर मुकेश कुमार सर। हाँ, मुकेश बाबू, तनिक सुनिए। सर। ये मुकेश भाई, देखिए, एगो ना अंग्रेजी का लॉजिक याद रखिए, कभी भी विल आएगा तो विल के बाद हमेशा क्या आता है? V1। के फर्स्ट हाँ फॉर्म। जी, तो हमेशा विल के बाद बेस फॉर्म आता है। सर कोई भी मॉडल हो ना उसके बाद V1 ही आता हाँ है जी, ना। हाँ जी, वही बेस फॉर्म। और वुड है तो वुड के बाद भी क्या आएगा? बिल्कुल बेस। बेस का मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर गो है तो गो के कितने फॉर्म होते हैं? फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। और ये बेचारा है बेस फॉर्म, एकदम जैसा है वैसा। तो याद रख लीजिए, मैरी एकदम जैसा है वैसा, ना तो मैरिज होगा ना मैरिड होगा, आप ऐसे बोलेंगे। अगर आप गेट भी लगाएंगे यहाँ पर तो गेट का गॉट नहीं कर सकते, क्योंकि गेट एकदम बेस चाहिए ना, वुड गेट। यहाँ पर आप जो भी लगाएंगे वुड के बगल में, विल के बगल में, बिल्कुल बेस होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, प्योर हो, कच्चा माल हो, प्रोसेस्ड ना हो। सर अगर सर सेकंड सेंटेंस कंटिन्यू में रहेगा तो अगर मैंने सोचा ही नहीं था मैं आपसे इतना बात करती रहूंगी। वुड बी टॉकिंग। आई वुड हैड बी टॉकिंग। नेवर थॉट दैट आई वुड बी टॉकिंग टू यू लाइक दिस, इस तरीके से। आई वुड बी टॉकिंग टू यू सो मच, सो फ्रैंकली, बहुत फ्रैंकली आपसे बात कर रही होंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा सर, वुड के बाद बी लगेगा और आईएनजी जो हाँ जी, कंटिन्यू में लगता है वैसा। जी, ओके सर। क्योंकि वुड के बाद हमेशा बेस आता है, तो बी हमारा बेस Sir, फॉर्म I है। had never thought I would attend. Okay, sir. व्हाट यू हैड नेवर थॉट? I had never thought I would attend the Chandan sir English speaking classes. सो नाइस ऑफ यू। या से हमारा थॉट तो बहुत पहले से था, हो नहीं पा रहा था। ओके, नीना जी आपकी तारीफ भर भर के आई है वीडियो में। ओके, थैंक यू। यस, एक दिन और करेंगे फुर्सत से रैपिड जी, फायर। ओके सर। फाइन। Whenever you have time. यस, या आई विल डू दैट। फाइन। तो अब स्टोरी टेलिंग में हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
अब हमारा बस एक आइटम रह गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हम कभी करेंगे, हो सके तो कल ही निपटा देते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे स्टोरी बोलने के लिए, फिर हमारे पास बस फ्यूचर रह जाएगा एक। तो मैं जाते जाते बता दूं कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं। हमें एक तो फोकस करना है अपनी स्टोरी टेलिंग, और दूसरा क्या फोकस करना है, कॉन्वर्सेशन। और कॉन्वर्सेशन में दो आइटम्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस और दूसरा है हाउ टू रिप्लाई। जैसे आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। अरे इधर नहीं थूकना। ऑडियो ऑफ कर, क्या कैसे करते हो आप लोग? ऑडियो ऑफ कर लो यार, प्लीज़ डोंट डू दैट। कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, आपको बतियाना हिंदी में है। एनीवेज आपने टेंथ, जैसे आप टेंस कंप्लीट कर लेंगे गाइस, टेंस तक ही ये बैच माना जाएगा बेसिक। जहाँ टेंस कंप्लीट, दिस बैच विल नो लॉन्गर बी बेसिक। उसके बाद ये बैच क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट। और जैसे इंटरमीडिएट होगा, फिर आपको चीज़ें रोज़ या हर दूसरे दिन नहीं सिखाई जाएंगी। आपको चीज़ें कब सिखाई जाएंगी, ओनली फ्राइडे, ओनली ऑन फ्राइडे। बाकी 4 दिन आपकी सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी, ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो टेंस तक आपके पास सर मॉडल। जी मैं बात बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट के अंदर क्या क्या आता है वो भी देख लीजिए। अगर आप अंग्रेजी सीखने के पर्पस से आए हैं तो आपको रोज स्पीकिंग करनी होगी, तो मानते हैं ना सर? यू विल गिव टॉपिक्स? अच्छा है। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी, पूरा प्रोग्राम मेरे पास है। जैसे आप पहुंच जाओगे इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले तो आपको चीज़ें कब सिखाई जाएंगी, ओनली ऑन फ्राइडे को सिखाई जाएंगी। और क्या क्या सिखाया जाएगा, टेंस पर जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो टेंस के तुरंत बाद हमारा टारगेट होता है इसकी लिस्ट। नाम सुना होगा, हैव टू डिपार्टमेंट। यस सर। इसकी पूरी एक लिस्ट आती है, कम से कम 10 से 15 होंगे जो यू आर बाउंड टू लर्न। आप इस पे काम करना शुरू करोगे। जब ये ख़त्म होता है, उसके बाद फिर हम आपको कराते हैं तुरंत पैसिव। क्योंकि थोड़ा सा मान लो कि कोई किसी को ईमेल भेजना है, कुछ करना है, वो जल्दी में है, तो उसको पैसिव का सहारा तो लेना पड़ेगा। तुरंत हम पैसिव डील कराएंगे आपको। और जब पैसिव होने लगता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कंडीशनल, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिव, और लास्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगी मॉडल्स की। और जब आप इतना कर लेते हो, उसके बाद इतना करने के बाद फिर ये बैच आपका इंटरमीडिएट नहीं रह जाएगा, ये बैच बदल जाएगा, एडवांस। अब ये एडवांस की तरफ भागेगा। जैसे एडवांस में गया तो आपको अब एडवांस स्ट्रक्चर सिखाए जाएंगे। अब आप अपने अंग्रेजी को ब्यूटीफाई करोगे, यू नो, लाइक डेकोरेट में ऐसे लिखते हो कि डेकोरेटिंग योर स्टोरी टेलिंग, मतलब सब कुछ डेकोरेशन पे आ जाएगा। एडवांस में वही जाएगा जो क्वालिफाई करेगा। दुनिया भर के टेस्ट होंगे आपके, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि एडवांस के लायक है भी कि अभी भी उ चल ही रहा है। जब कोई मिस्टेक नहीं, एडवांस आप समझते हो क्या होता है, इट्स अ बिग डील। तो इतना सीखने के बाद, और जब आप ये सीख रहे हो तब तक आप सोचो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तो आप सिर्फ फ्राइडे सीख रहे हो ना। कुछ टॉपिक पूरे 1 घंटे में सब खत्म हो गया, कुछ होगा जो 1-2 दिन लग जाएगा, 2 फ्राइडे लग जाएंगे, लेकिन आपकी स्पीकिंग रोज होगी। क्योंकि पूरी स्पीकिंग टेंस बेस्ड होती है। ये जितना आप सीखोगे ना इंटरमीडिएट में, ये बस 1%, आधा %, 2%, लेकिन पूरा जो कहानी है वो टेंस पे होती है। तो इसलिए हमें रोज़ बोलना पड़ेगा। तो ये है हकीकत। बस उसके बाद दुनिया भर के प्रोग्राम्स होंगे, आपको खुद ही पता चलेगा यार फ़र्क पड़ गया है, अगल बगल वाले को पता चलेगा। तो गाइस बस अब मुझे निकलना है, मैं आपको ये भेज देता हूँ। सर स्टोरी सेंड करते क्लास की। सर स्टोरी क्या कह रहे हैं शालिनी? मतलब कितना समय लगेगा? इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी सर मिल जाती तो। हाँ स्टोरीज मैं आपको दूंगा। देखिए गाइस, जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा मैं आपका ब्रेन वॉश कर दूँ। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। जी, तो थोड़ा मैं आपका ब्रेन वॉश कर दूँ कि अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी कुछ दिनों में इंसान फर्राटेदार होता है, तो बहुत गलत जगह है। ऐसा होता नहीं हकीकत में। ना ये 3 महीने में होता है, ना ये 2 महीने में होता है। हाँ, इंसान जब सीखता रहता है तो उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है।
जो इंस्टीट्यूट ये कह दे कि आइए मैं 3 महीने में आपको फर्राटेदार करके निकाल दूंगा, आप समझ लीजिए कि प्योर बिजनेस हो रहा है, आपसे पैसा कमाया जा रहा है। ऑडियो जरा ऑफ कर लीजिए सारे लोग, शोर आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग खुद अपने अंग्रेजी को देखो ना, कोई कितने साल से लगा होगा अंग्रेजी में, ट्राई कर ही रहा होगा, यू नो, अब तक आप ट्राई कर ही रहे हो, तो ये हकीकत है। तो इस सपने और भ्रम से बाहर निकल जाइए कि हाँ मैंने कहीं ज्वाइन किया और मैं मस्त फर्राटेदार होकर निकलूँगा। इट टेक्स टाइम। मैं प्रोग्रेस आपको बताता रहूँगा कि हाँ इतना फ़र्क पड़ा है, अभी और चाहिए, ऐसा होता रहेगा। कोर्स जो होता है, कई लोग कहते हैं कि सर कैसे पता चलेगा, हमने तो कोर्स ज्वाइन किया। तो कोई भी जब बेसिक से एडवांस का कोर्स करता है तो ऑफ कोर्स उसको 6 से 7 महीने, 5 से 6 महीने, किसी को 3 से 4 महीने लग जाता है कोर्स कंप्लीट कराने में। टेंस तो मैं अभी 1 घंटे में सारा टेंस आज के आज कंप्लीट करा दूंगा, तो क्या इंसान को बोलना आ जाएगा? सोचिए। जी नहीं। और टेंस, ये सारे लेक्चर क्या यूट्यूब पर नहीं है? क्या किताबों में टेंस नहीं है? सब है। कहाँ बोलना आ रहा है? बोलने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को आपस में ग्रुप बनाना होगा, आपको आपस में लगे रहना होगा, 2-2 घंटे बात करनी होगी। कई बच्चे करते हैं हमारे, लेकिन आप इस क्लास के बाद घर पे कुछ नहीं बोलते हो, कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर ये सपना देखते हो कि मैं बहुत फर्राटेदार हो जाऊंगा, तो प्लीज़ आप जैसे आपका मंथ कंप्लीट होता है आप छोड़ दीजिए क्लास। आप नहीं होंगे फर्राटेदार इतने आसानी से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दैट्स अ फैक्ट। इतना आसान अंग्रेजी नहीं है दोस्तों। हेलो जी सर। जी बोलिए मोनू। सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है सर, ये स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन सर हो चुका है सर? सर ये हो गया है, बट मैं रिवाइज़ करा दूंगा। जो नए बच्चे हैं उनको जरूर मैं रिवाइज़ करा दूंगा। सर ये कीप अप स्टार्ट वर्ड सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप जो बोल रहे हो तो इंग्लिश में थोड़ा तो उसके लिए अभी जो बैच है आपको, फिर ये बैच गलत बैच में आप आ गए ना। रात को 10 बजे बेसिक चलता है, सुबह 11 बजे बेसिक चलता है, उस बैच को ज्वाइन कीजिए। इस बैच में when will this video upload? दिस वीडियो विल बी अपलोडेड टुनाइट। जो भी नया है, एक मिनट, जिसको बेसिक नहीं पता है भाई वो बेसिक बैच में आइए। इस बैच में तो आप स्टोरी टेलिंग चलेगी। जी बोलिए सर। आज आपने पढ़ाया वो आप यूट्यूब पे पैराग्राफ पे है क्या सर ये टॉपिक? पैराग्राफ पे मतलब कैसे? अच्छा वो पैराग्राफ जो मैं कराता हूँ। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ऐसा स्टोरी है है नहीं, तो प्लीज लिंक भेजो ना सर। ऐसा है नहीं, बट मैं बनाऊंगा। सही आइडिया आपने दिया, मैं इसको बनाऊंगा। सर बेसिक बैचेस से कितने बजे नाइट में सर? रात को 10 बजे है, रात को 10 अभी बजे। क्या चल रहा है उसमें? उसके अंदर आज चलेगा मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास कौन सी कार है? स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। सर पैराग्राफ से ना बहुत अच्छा सर समझ में आता है सर। पक्का मैं इसको करूंगा। थैंक यू सर। इसको करूंगा ये। सर पोजीशन के बाद टेंस कराओगे ना आप तो उसमें सर? हाँ जी, पोजीशन के बाद प्लीज। टेंस आता है। हाँ जी नीना जी बोलिए। सर आप कुछ पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने कुछ ऐसे ही लिख लिया बैठे बैठे। वो जो आप दोस्त वाली बात बता रहे थे उसमें आई वेंट टू योर होम बट द डोर वाज लॉक्ड, वेयर हैड यू गॉन। मैंने अगर क्वेश्चन किया या किसी ने मुझसे किया वेयर हैड यू गॉन, तो जो आंसर है वो हेड में ही देना कंपलसरी है या इंडेफिनिट में भी दिया जा सकता है? मतलब परफेक्ट में ही देना होगा या इंडेफिनिट में भी दे सकते हैं? आई वेंट टू टेम्पल कहा जा सकता है या नहीं आई हैड गॉन टू टेम्पल? वहाँ पर जो करेक्ट है वो आई हैड गॉन टू टेम्पल। हाँ ये मुझे भी समझ आ रहा था। अगर कोई अपने मुंह ऐसे किसी के मुंह से निकल गया कि नो आई वेंट टू टेम्पल, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, किसको उतना अंदर घुस के पता है। बट द करेक्ट इज आई हैड गॉन टू टेम्पल। यस आई हैड गॉन टू टेम्पल। और चाहे तो स्टेट ऑफ बीइंग में नॉर्मल कह सकता है कि आई वाज इन द टेम्पल, स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकता है नॉर्मल, मैं टेम्पल में था, ये बोल सकता है एट दैट टाइम। यस एट दैट टाइम। फाइन गाइस, Can you send the video? Send the PDF this video. यस आई एम गोइंग टू डू गाइस, आई हैव माय नेक्स्ट बैच। आज उनका डिबेट है तो मैं चलूँ गाइस। Okay. डिबेट, अगर आप में से किसी को डिबेट करना है तो बोलिए, मैं आपको बुलाता हूँ, डिबेट कीजिए बैठकर। सर मैं रेडी नहीं हूँ सर, थोड़ा ठीक टाइम लगेगा अभी। आओ ना तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके, वो एकदम से तो खड़ी होके कुछ फिर हाँ ये तो ऐसा लग नहीं पाया। कोई नहीं। इसमें भी कभी डिबेट होगा, ये सब डिबेट एडवांस बैच का है, ये सब कुछ होगा जरूर। चलिए गाइस, चलूँ मैं। थैंक यू गाइस।